اور بالخصوص ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید ابھی 12:35 ہو رہا ہے تو بھوک تو نہیں لگنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ نعرے کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم ہمارا بیان انشاءاللہ آغاز کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جزاک اللہ۔ بہرحال آپ سب کے اندر جو چیزیں ہیں، ابھی تک جو اتنے بھی بیانات ہوئے تھے، میں ان سب بیانات کو جو ہے میں سن رہا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے پھر یہاں کے جو حالات ہیں، ان حالات سے بھی جو ہے ہمارے یہاں کے جو لوکل لیڈران ہیں وہ بھی جو ہے مجھے بتا رہے تھے۔ بہرحال اردو کتاب کا جو آؤ اردو سیکھے جو کتاب کا جو رسم اجرا تھا، اس کے لیے بھی جو ہے یہاں پر آنا ہوا۔ پھر یہاں پر آنے کے بعد میں پھر یہاں کے جو لوکل مسائل اور پھر اس کے بعد میں اور بھی دیگر کئی ایشوز بھی جو ہے آپ بھی فرما رہے تھے، تو بہرحال ان سب کے اوپر جو ہے انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ اب تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب جو ہے، آپ کا نام اسماعیل صاحب جو ہے سوال بھی وہی کرے، جواب بھی وہی دیے، مطلب جواب پہلے دیے پھر بعد میں سوال کرے کہ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارے صرف 3 ہی رہنما ہیں، بلکہ آپ خود جو ہے، لیکن اس سے پہلے جواب بھی دے دیے۔ اردو کی یہ حالت ہے بولتے اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم خود ہیں بولتے، اب پھر اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ نیکسٹ الیکشنز کے وقت جو ہے آپ 3-4 کینڈیڈیٹس کو آپ کو سلیکٹ کر کے لائیے، جو آج کے حالات میں جو ہے جو آگے بڑھ کر سیاسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہمارے قوم میں جو رہنما بننے کے قابل قدر لوگ ہیں، آپ لائیے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کو بابو صاحب سے جو ہے لڑ کر جھگڑ کر انشاءاللہ ٹکٹ دکھانے کی کوشش، بھرپور کوشش میں کروں گا۔ کہاں پر مطلب وہ جو سیاسی شعور ہے، وہ جو سیاسی شعور ہونا چاہیے، وہ سیاسی شعور ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر سیاسی شعور رہتا تو میرے پاس یہ ریپرزنٹیشن نہیں آتا۔ بہت پریکٹیکل طریقے سے بات کر لیں گے ہم لوگ۔ اگر سیاسی شعور رہتا، 30% ہم لوگ ہیں بول کے آپ لوگ جو ہے اس کے اندر مینشن کریں، 30% ہونے کے باوجود بھی جو ہے آپ پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکے، یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ اب ہمارے کو جو ہے سیاست دانوں کے اوپر سے بھروسہ اڑ جا رہا، بولتا ہے سیاست دانوں کو بھروسہ کرو، کون بولا آپ کو؟ میں تو نہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی، وہ آپ کا عقل سلیم یا آپ کی دانش مندی جو ہے آپ کو اس طرف جو ہے اگر لے کے جاتی ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں۔ آپ اپنی قوم کو اور آپ اپنے قوم کے اندر جو دانشور حضرات ہیں ان سے مل کر جو ہے ایک ایسی طاقت بنائیے کہ آگے والا جو ہے مجبور ہو جائے کہ آپ کی ڈیمانڈ کو جو ہے سنیں۔ ابھی تک بھی جتنی بھی باتیں بھی سب لوگ جو ہے گزارش ہی کر رہے ہیں۔ گزارش کیوں کر رہے ہیں بھئی؟ آپ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ گزارش سے اٹھ کے جو ہے اپنے خط کو ڈیمانڈ پر لے کے آئیے، پھر بعد میں جو ہے بات جو ہے آپ کی کان پہ لی جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت زبردست شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب آپ کی جو خد ہے، ہمارے جو مسلم قائدین کا جو خد ہے، وہ اس حال پر ہے کہ اگر انہیں کندھے پہ ہاتھ ڈال دیا تو ہو گیا۔ کیا ہوئے؟ میں کیا تو غلط بول رہا ہوں؟ ہمارے ہی پارٹی میں ہم سب جو ہے کیا بولتے ہیں آرگنائزیشن سے بھی جڑے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے پارٹی سے بھی جو ہے ماشاءاللہ کئی ہزار کا تعلق۔ دیکھیے، کسی کو گلا شکوہ کرنا جو ہے آج کل فیشن ہو گیا۔ گلا شکوہ چھوڑ کے پہلے اپنی گریبان میں جو ہے جھانک کے دیکھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ ہر سوال کا بھی جو ہے جواب معقول مل جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں پر علماء اکرام بھی موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو ہمارے دو جہاں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان خاص ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان جو ہے میں لفظ اونچائی کروں یہ مجھے شوبھا نہیں دیتا، لیکن پھر بھی جتنا علم میرے پاس ہے، اگر میں کچھ غلط ہوں تو مجھے صحیح کر سکتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے جب تک آپ اپنے حالات نہیں بدلتے تب تک آپ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ کے حالات جو ہے پہلے بدلنے کی کوشش کیجئے، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ گلے شکوہ شکایت جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر چیز تھی جس کے اوپر روشنی ڈالنا ضروری تھا، لیکن انشاءاللہ جب آپ میرے کو اس چیز پر یہ آپ ریپرزینٹیٹو مجھے دیے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے فوری طور پہ اس کو ایک پراپر انداز میں جو ہے گورنمنٹ کی نظر میں لے جایا جائے گا، اور جو سینکشن جو ہوا ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کے اندر ہمارے سے جتنی بھی کوشش ہوں گی انشاءاللہ حتی الامکان پوری کوشش کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ ایک اور بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں،
इनबिल्ट माइक अल्लाह ताला मुझे दिया है। आखिर तक आवाज आ रही है? आ रही है ना? माइक की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल आज का जो प्रोग्राम उर्दू एकेडमी की तरफ से जो आओ उर्दू सीखने के लिए जो है जो किताब हमने जो है लेकर आई है, मैं आपको एक बात कहते चलूं कि उर्दू एकेडमी की 50 साल जो तारीख है, इस 50 साल तारीख में पहली मर्तबा एक लिटरेरी कमेटी को जो है कायम किया गया। एक लिटरेरी कमेटी को कायम किया गया और फिर उसके बाद में जो है ये किताब जो है ये अपने आप में एक जिंदा मिसाल है कि ये जो है उर्दू एकेडमी की तारीख में पहली किताब है जो है उर्दू एकेडमी की जानिब से जो है शायद। और मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि उर्दू क्या है, अगर आप उस किताब को जो है खोल के देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो लफ्ज मिलेगा पेश लफ्ज के अंदर, तहजीब किसे कहते हैं। अगर तहजीब सीखना है, तहजीब को समझना है, अगर तहजीब को जानना है, आप जो है अपने बच्चों को जो है इंशाल्लाह उर्दू सिखा दीजिए। तहजीब इंशाल्लाह ऑटोमेटिक है, मतलब उर्दू जबान से ही तहजीब है, तहजीब से ही उर्दू जबान है। अगर उर्दू जबान में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है तहजीब जो है आपके खून की रवानगी में जो है वो शामिल हो जाएगी। ये उर्दू जबान की खुसूसियत है। लेकिन मैं उसके साथ साथ मैं आपको इस चीज़ की तरफ भी जो है मैं आपको बोलते हैं नजर ثانی डालने की जो है मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो यहाँ की हमारी जो लोकल जबान है उस जबान का भी जो है सीखना जरूरी है, क्योंकि जबानें जो है अल्लाह ताला ने जो है इसलिए बनाई कि आपस में जो है हम एक दूसरे को जो है कम्युनिकेट कर सके, आपस में एक दूसरे को समझ सके। अगर आप उर्दू में कहेंगे, अगर जो आपका जो दीनी काम है या आपका जो दावती काम है, अगर आप जो है किसी भाई को जो है किसी गैर मुस्लिम भाई के पास जाके अगर आप उर्दू में ही बात करेंगे तो फिर ये भी जो है बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उर्दू बोलता हूँ, तेलुगु में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से बोलने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत दी है। और उसके साथ साथ में अंग्रेजी में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा 19-20 उसी रफ्तार से जो है बात करता हूँ। ये जो है हमारी एक पॉजिटिव मतलब जितनी जबानें आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपको जो है फायदा होगा। अभी वही वो साहब भी बता रहे थे कि उर्दू जबान अगर सीखेंगे तो आगे चलकर क्या कर सकते हैं, आपके लिए जो है वो दरवाजे खुले नहीं है। कौन बोलता है ये बात? आप अगर आप उर्दू जबान सीखते हैं तो आपको जो है, अगर तेलुगु जबान सीखते हैं तो आपको जो है मुख्तसर तौर पे आपको सिर्फ आंध्र प्रदेश के उतने दूर तक ही या नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तेलंगाना में इसका जो है फायदा हो सकता है। अगर आप उर्दू जबान सीखते हैं तो आपको इसका फायदा जो है नेशनल लेवल पे होता है। क्या मेरी बात से आप मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक हैं तो थोड़ी सी ताली बजा दीजिए। तो एक तो ये बात, दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल में नहीं बल्कि अगर इंटरनेशनल लेवल के अंदर भी अगर आप कदम रखेंगे तब भी जो है आपको उर्दू जबान वहां पर मिलेगी। तो कौन कहता है कि आपको जो है क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते? अपॉर्चुनिटीज जो है एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलते हैं और वो भी जो है उर्दू जबान की वजह से मिल सकते हैं। तो इसलिए जो है इस चीज का जो है जवाब हम लोग माकूल जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद में उर्दू एकेडमी जो अभी ये जो किताब लाई है, ये किताब लाने का जो असल मकसद है, अगर आप हिस्ट्री को अगर देखते हैं, अगर कोई भी बंदा या कोई भी कौम को जो है अगर खत्म कर देना है या उसको निस्तो नाबूद कर देना है, सबसे पहले उस कौम की किस चीज के ऊपर हमला करना पड़ता? अगर उस जबान को अगर आप खत्म कर देते हैं तो फिर उस कौम को जो है धीरे 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 उसको भी जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो उर्दू जबान की बका हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक तरफ से ये कहता हूँ, फिर दूसरी तरफ से इसी किताब में हमने जो है क्लियरली हमने मेंशन भी किया है कि उर्दू जबान का कोई मजहब नहीं है और उर्दू किसी मजहब की जबान नहीं। ये दोनों के दरमियान का जो रास्ता है, इस रास्ते को अपना कर जो है हिंदुस्तान में उर्दू जबान की फलाह बहबूदी, सरसब्जी और शादाबी के लिए काम करना। अगर बात समझ में आ गई तो बहुत दूर की बात है, बहुत बारीकी वाली बात है। मतलब मैं एक सियासतदान होने के नाते, एक गवर्नमेंट का जो है एक फर्द होने के नाते जो है मैं खुल के जो है चंद चीजें बता भी नहीं सकता। एक बात, इसके बाद में आप जो है गौर कीजिए कि उर्दू जबान सिर्फ अभी जो है इस तरीके के साथ जो है किताबें लाना, आज किताबें पढ़ना, आज माशाल्लाह उलमाए किराम भी जो है अगर कोई मसला है, आजकल कई नए नए जो है वो ऐप्स भी आ गए हैं। उसके बाद में नेट के अंदर जो है एवरीथिंग इज अवेलेबल। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी को कोई किस्म का फतवा पूछना है या किसी को कोई अगर कुछ अपनी डाउट्स को जो है क्लियर करना है, तो अब बंदा यूट्यूब में चला गया या नहीं है तो किसी मुफ्ती साहब को जो है पूछ लिया तो फौरन जो है आपको व्हाट्सएप के जरिए से आपको मैसेज में, मतलब हाईटेक जमाना चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं समझता हूँ ज्यादा नहीं चल रहा है।
फोन किसके पास कम है भाई? फोन किसके पास नहीं है? सबके पास है। सबके पास फोन है, तो हाईटेक जमाना ही चल रहा है। हमारे हजरत यहाँ बैठे हैं जगह, उनको भी उनके पोतरे पोतरियाँ भी जो है उनको व्हाट्सएप देखना और फेसबुक देखना सिखा डाल के रहते हैं। तो वो दौर में हम लोग चल रहे हैं। तो इस दौर के अंदर किस तरीके के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जो है उर्दू जबान को जोड़कर किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये भी इसके ऊपर भी जो है हम लोग गौर फिक्र करते हुए गुज़िश्ता 20 साल से उर्दू एकेडमी के जो 36 कंप्यूटर सेंटर्स हैं, ये सब के सब जो है एकदम बेकार बाजू में पड़े हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी का चेयरमैन होने के बाद में हमारे इज्जत माब चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब बोल के जो उर्दू जबान को चाहने वाले हैं वो कोई नहीं बोलता। उनका नाम लेने से पहले हम जो है उनको मोहसिन उर्दू जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब को। इसकी एक खास वजह है, मैं मस्जिद में हूँ, मैं माशाल्लाह अभी गनी साहब भी बता रहे थे कि मैं जो है किसी तरीके की बात जो है, जब अगर कोई हक है तो हक को जो है बाआवाज़ बुलंद बोलना जरूरी है। आप क्यों आपको जो है मोहसिन उर्दू बुलाते हैं, इसका भी जो है वजाहत होना जरूरी है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बाबू साहब के अलावा अगर कोई दूसरी शख्सियत देखेंगे कि भाई कोई तो भी उर्दू जबान को इतनी ज्यादा फरोग दिया होगा देखेंगे बोले तो आपको दूर दूर तक कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं मिलती सिवाय बाबू साहब के। उसकी वजह यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मौजूद है मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से, हैदराबाद के अंदर गच्चीबोली जैसे इलाके में 200 एकड़ के अंदर 200 एकड़ जमीन क्या होती है वहां पे पता है? 200 एकड़ जमीन देने वाली शख्सियत जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब है, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया होने के बाद में कर्नूल के अंदर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी को जो है दिया गया। फिर इसके बाद में जो है उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का जो ओहदा है उस ओहदा को देने वाले भी जो है जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब है। फिर उसके बाद में आज पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी 360 से जायद उर्दू घर कम शादी खाने मौजूद हैं, इन सब की तामीर करने वाले शख्सियत भी जो है जनाब बाबू साहब। इसके साथ साथ आज हमारे अभी कोई टीचर भी यहाँ पर मौजूद है, शायद गवर्नमेंट टीचर जी। तो उर्दू के अंदर स्पेशल डीएससी लेकर आकर आज जितने भी उर्दू के अंदर जितने भी हमारे टीचर्स मौजूद हैं, आपके गुत्ती में एक साहब का रिटायरमेंट हो गया फिर उसके प्लेस में कोई नहीं आ सके बोल तो वो गुत्ती के शहर के मुसलमानों की नाकामयाबी है, मैं माजरत के साथ कह देता हूं। आज तक पूरे इसके अंदर जितने भी लोग लेके आए वो पूरे के पूरे जो है 99% बाबू साहब स्पेशल डीएससी उर्दू जबान के अंदर लाने की वजह से हुआ। और जितने भी सब गवर्नमेंट टीचर्स जितने भी हैं ये पूरे उन्हीं की वजह से हैं। और उसके साथ साथ में 1146 उर्दू स्कूल्स मौजूद हैं सूबे आंध्र प्रदेश के अंदर। एक रोशनी स्कीम बोल के लेके आए थे, उस रोशनी स्कीम के जरिए से जो है आज जितने भी स्कूल्स मौजूद हैं उसी स्कीम के जरिए से जो है ये सारे के सारे स्कूल जो है मौजूद हैं। तो फिर हम उनको मोहसिन उर्दू ना बुलाकर और क्या बुलाएं? बुलाना जरूरी है कि नहीं है? बहुत कम आवाज आती है, जरूरी है नहीं है? मैं आपको कन्विंस करने नहीं आ रहा हूं, नहीं तो तेलुगुदेशम पार्टी को वोट डालो बोल के बोल लेने की नहीं आया। लोकल इलेक्शंस भी नहीं है, असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन जो हक है उस हक को जो है आपके सामने जाहिर करने के लिए आया। इसके साथ में जो है जो कंप्यूटर सेंटर्स की जो बात मैं कह रहा था, और कंप्यूटर सेंटर्स जो 36 कंप्यूटर सेंटर इसके अंदर पूरे के पूरे कंप्यूटर जो है एकदम बेकार जो है पड़े हुए थे तकरीबन 20 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में जो है चेयरमैन बनने के बाद में 3 करोड़ रुपए स्पेशल ग्रांट देकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 36 के 36 पूरे कंप्यूटर सेंटर्स के अंदर जो है नए कंप्यूटर्स एकदम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो कंप्यूटर्स को जो है वहां पर लाया जा रहा। और जितने भी उर्दू एकेडमी के जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं इन सबको बहाल करके ये जो हमारी जो आने वाली नस्ल है, अगर कोई बंदा अगर हाफिज कुरान हो गया या उर्दू के अंदर सीख लिया तो उन्हें जो है इमामत तक या नहीं है तो मौजनगिरी कर लेना, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं इसकी हालत होगी। लेकिन इससे हटकर भी जो है हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं, जो क्योंकि आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है मबनी है। और टेक्नोलॉजी आज जो है ये डीटीपी या नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट या C++, जावा इसके हटके जो है आज एआई का दौर है। एआई क्या है बेटा? बच्चों आप बोलो एआई क्या है? अमा बोलो बेटा, जोर से बोलो। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक सुनामी की तरह जो है आज पूरे सिस्टम के अंदर जो है आ गया है। और इसके साथ साथ हमारे बच्चे जब तक कंधे से कंधा मिलाकर इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक जो है ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते।
तो आने वाले दिनों में ये जितने भी 36 कंप्यूटर सेंटर्स हैं, इन कंप्यूटर सेंटर्स के जरिए से इंशाल्लाह इन सारे बच्चों को जो भी उर्दू जबान में जो है आगे बढ़ रहे हैं, इन सबको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल जेमिनी की तरह जितने भी जो है जो लेटेस्ट कोर्सेस हैं, इन सब कोर्सेस के साथ जो है इन सबको जो है इंशाल्लाह फराहम किया जाएगा, ताकि ये आगे बढ़कर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से भी वो आगे बढ़े। अब आप पूछ सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो क्या आता। मैं आपको एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल 2 दिन पहले ही मेरे नजर से गुजरा था। ध्रुव राठी को शायद आप लोग जानते होंगे, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जो बहुत ज्यादा जो है जो प्रेजेंट जितने भी सिनेरियोस हैं या उसके ऊपर जो है माशाल्लाह बोलते रहते हैं। तो ध्रुव राठी का जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है उसके क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। उन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक मुसलमान बंदा, हमारे ही बेंगलुरु का रहने वाला, वो बंदा जो है जाकर उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास सीख लिया होता। क्लास सीखने के बाद में वो बंदा 3 महीने के बाद में वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है और उसके अंदर जो है कंप्लीट उर्दू जबान को बेस कर कर इस्लामी तालीमात और दीन के जितने भी जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत फहमियां हैं, उनको दूर करने के लिए और उसके साथ साथ में जो है उर्दू जबान को फरोग देने के लिए, इन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर नई रोजाना जो है वीडियोस जो है फराहम कर रहा है। और उसके जो है 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, 1.2 मिलियन, समझते हैं आप क्या है। और उसकी महीने की जो कमाई है करीब 30 से 40 लाख रुपए जो है वो कमा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए 30 से 40 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है, उसकी जो कंपनी है उसके अंदर कितने मुलाजिम होना चाहिए आप बोलिए? बहुत सारे मतलब मुराद एक 50, 20, 25, 100, 2000 तो होना चाहिए उसके कंपनी के अंदर। उसके अलावा कोई और दूसरा कोई एम्प्लॉय नहीं है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जो आप करना चाहते हैं सिर्फ वो कमांड अगर आप उसको दे देते हैं सही मानों में, मतलब वो कमांड देना किस तरीके से है उसका अगर ट्रेनिंग हो गया तो वो वीडियो आ जाता, आप वो वीडियो ले लेके जो है अब सोशल मीडिया में आप आगे बढ़ जाते हैं और आपको जो है जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम इसके तरफ से जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जो है जनरेट होना शुरू हो। मतलब इतने जो है फायदे हैं। तो बहरहाल मैं आप सब हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप जो है उर्दू एकेडमी ऑफ आंध्र प्रदेश जो भी काम कर रही है इंशाल्लाह उसको जो है आगे लेकर चलें। यहाँ पर उर्दू एकेडमी होगा अभी साहब, उर्दू एकेडमी क्या है, लाइब्रेरी सेंटर या कुछ है यहाँ पर नहीं है, कंप्यूटर सेंटर भी नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह मैं वादा तो नहीं करता हूँ क्योंकि हर नमाज के बाद में हमारे उलमा इकराम बोलते हैं कि कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो अब सियासतदान हूँ तो सियासतदान अमल कितना करते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है परहेज करता हूँ कि अमल करने के लिए जो है उसको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह आपके जो एमएलए साहब हैं यहाँ के, कल भी उनसे फोन में राब्ता हुआ था तो माशाल्लाह बहुत ही खुशामद किए थे वो, लेकिन वो तिरुपति में हूँ मैं, इसकी वजह से मैं आ नहीं सकता। लेकिन शुगली साहब आप जरूर आए बोल के बता रहे थे, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ का जो DMW है उसको भी जो है राब्ता करके फिर उसके बाद में यहाँ के एमएलए साहब से और हमारे लोकल जो तेलुगु देशम पार्टी के जो हमारे कायदीन हैं इन सब से इंशाल्लाह मशवरा करके अगर हो सकता है तो इंशाल्लाह यहाँ पर एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर का जो है इंतजाम करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, ताकि हमारे जो आने वाली नस्ल है जो भी काम हम कर रहे हैं, क्योंकि इतना 30% का जो इतना बहुत बड़ा जो है तबका यहाँ पे मुसलमानों का है, तो इंशाल्लाह इन सबको भी जो है लेकर आगे चलेंगे। मैं आप लोगों से बस आखिर में बस इतना ही कहता हूँ कि शिकवे शिकायत जो है कम कर दीजिए, गिरेबान में झांकिए हमारी हालत क्या है, किधर है और किस तरीके के साथ आगे बढ़ना है। जो सियासी क्या बोलते हैं दूरअंदेशी है, ऐसे लोगों को जो है साथ लेकर जो है काम कीजिए। और हमारा आप सब जानते भी होंगे या नहीं जानते मुझे नहीं पता, अभी तो तेलुगु देशम पार्टी और सब लोग समझते हैं कि मैं तेलुगु देशम पार्टी, आप तो वही जानते हैं ना, तेलुगु देशम पार्टी हुकूमत में है तो मैं भी तेलुगु देशम पार्टी का है भाई, लेकिन मेरा तेलुगु देशम पार्टी के अंदर मेरा प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है, मेरी मेंबरशिप भी जो है तेलुगु देशम पार्टी में नहीं है। बावजूद उसके हमारे इज्जतमाब चीफ मिनिस्टर जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने जो है जो हमारी जोश या जज्बा या जो भी काम करने का जो तरीका देखा, उसके लिए जो है उन्होंने हमें पार्टी में ना होने के बावजूद, मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी पार्टी में हुए बगैर
उसको जो है किसी तरीके का ओहदा मिलना, शायद कि मैं अव्वल नंबर में आता हूँ या इसके बाद में कोई है, मुझे पता नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमें इससे नवाजा। मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए एक हिकमत अमली के तहत। मैं बिलखुसूस आप लोगों से कह रहा हूँ, आप अपनी आवाज़ को जो है एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ाइए। आपके लिए विजयवाड़ा में खादिम फारूक शुगली बैठा हुआ है, आप कभी भी आ सकते हैं। आपको जो भी काम है, जो भी मसला है, इंशाल्लाह लाने की कोशिश कीजिए। हम जो है इंशाल्लाह उसको हद्दल इम्कान हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।